بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے. اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا. دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے. دعا اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ اپنے سے مانگنے کو پسند کرتا ہے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، پروگرام دعا اور دوا، اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. ناظرین، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. میں فون نمبرات دہرا دوں: 18004192 اور 9989974324. ہماری رہنمائی کے لیے آج حیدرآباد کی اسٹوڈیو میں موجود ہے مولانا شیخ عبد الرحمان اظہری صاحب، جو عالم دین ہیں. آئیے ہم اور آپ مل کے ان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وائس نہیں آ رہی. مولانا صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں، اور بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. آپ آج ہماری رہنمائی کریں گے. مولانا صاحب، پہلے پروگرام میں کالر کو شامل کر لیں، دیکھیں لائن پہ کون موجود ہیں. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں گنٹور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں محترمہ. ایک بار کری تھا نا. جی بالکل فرمائیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، وہ میرے ہسبینڈ ہے نا، ایسا پیتے، ایسا مارتے تھے. جی. انہوں سے امی طرف سے بھی پوچھے، ہمارے امی آپ بھی پوچھے، کون بولے تو میں سنتا نہیں کرتے تھے، پیتے مارتے شراب پیتے. جی بالکل، آپ کا مسئلہ ہم نے سن لیا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہلو. السلام علیکم. وعلیکم. جی فرمائیں، کون صاحب ہے، کہاں سے، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں، میں سلطان نگر سے. شاید آپ تک ہماری آواز صحیح سے نہیں پہنچ رہی ہے. مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم اور بہت بہت مبارک ہو. ہمیں امید ہے کہ آپ کا عمرے کا سفر بہت اچھا رہا ہوگا، اور یہ بھی امید ہے کہ جیسے کہ آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ آپ نے ہم سب کے لیے دعائیں بھی کی ہوں گی. تو جو یہ محترمہ کا مسئلہ ہے، ان کے شوہر شراب پیتے ہیں اور بہت زیادہ مار پیٹ گھر میں تشدد بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو ہدایت دیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے صرف تعویذ کے ہی سہارے نہ بیٹھیں آپ، بالکل دعا وغیرہ یہ اس میں بہت اثر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ ظاہری طور پر بھی ان کے ذہن کی تبدیلی کے لیے کوشش کریں. کسی عالم سے ملوائیں یا کسی ایسے ماہر سے جو سائیکالوجی کا ماہر ہو، اس سے ملوائیں تاکہ اس کا ذہن بدلے اور شراب چھوڑ دیں. اس کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو وظیفہ بتائیں گے وہ بھی کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اللہ کے 3 مبارک نام ہیں یہ. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 313 بار روزانہ صبح پڑھنا ہے. پڑھ کے دعا کریں. ہو سکے تو آپ کے شوہر کو جو پانی وغیرہ دیتے ہیں آپ اس میں بھی پڑھ کے دم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو بہت جلد بہتری آئے گی، وہ شراب چھوڑ دیں گے. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں ایڈ سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے محترمہ. ہمارے جو بھائی ہیں چھوٹے، جی. ان کی کچھ ایسی دعا بتائے، وہ تو خراب ہوتی ہے ان کی. کیا ہوتا ہے؟ اوپری ایسا ہوتا ہے ان کو. نہیں سنائی دے رہا مجھے صاحب سے. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو نا سر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کچھ بھی ایسا ہوا کا اثر ہوتا ہے ان کو. مطلب اثرات ہیں ان کے؟ جی، کچھ ایسی دعا بتائیے جو وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. ایسا شبہ ہے آپ کو کہ آپ کے بھائی کے اوپر اثرات ہیں یا کوئی اس طرح کی دقت ہے. جی مولانا صاحب کیا؟ جی بہن، ہوتا کیا ہے ان کو؟ پتہ نہیں ان کے پریشانی کیا ہے؟ ان کو پریشانی ہے، ان کو خون نکلتا ہے، بلڈ نکلتا ہے، سوئی بھی نکلتی ہے ان کے سینے میں سے.
खून निकलता है सर बहुत। अच्छा जी ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, चलिए इंशाल्लाह। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी तो इसके लिए अर्ज है बहन, आप अपने भाई से कहें कि रोज़ाना सोने से पहले 3 कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, 3 बिल्कुल छोटी छोटी सूरतें हैं। ये 3 मरतबा तरतीब के साथ पढ़ना है। पहले कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है। ये 3 सूरतें 3-3 बार पढ़ना है और पूरे बदन पे दम कर लेना है। हाथों पे दम करें, पूरे हाथों को जहां तक हाथ पहुंचता है सर से लेकर पैर तक हाथों को फेर दें। रोजाना सोने से पहले ये अमल करें और सुबह फजर नमाज बाद ला इलाहा इल्लल्लाह 60 मरतबा पढ़ना है। ये 2 काम जारी रखें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह वो जादू के असरात या आपका शुबा जो भी है सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसकी पाबंदी न छोड़ें। सोने से पहले बिस्तर पे जैसे पहुंचेंगे ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। जी एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब कौन साहब कहाँ से? हम डिब्रूगढ़ से बोले हैं। जी फरमाइए। ये हमारी मैंने आपका डायबिटीज है, हम तो ऐसे या अल्लाह या रहमान पढ़ रहे हैं, या रहमान या रहीम पढ़ रहे हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सिखा नहीं आता है। क्या फिर से अपना मसला दोहराइए प्लीज। या रहमान या रहीम, हमारा डायबिटीज है, डायबिटीज नहीं कम रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी सुबह बता दें ताकि अल्लाह का फजल कहते हैं हमारे डायबिटीज। भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा। मौलाना साहब क्या आप इनकी बात सुन रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ समझ गया मैं इनका मसला कि ये डायबिटीज के मरीज हैं, ये कुछ वजीफा इनको दिया गया था, ये कर रहे हैं, लेकिन उसमें कमी नहीं आई। देखिए भाई 2 चीजें हैं। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता कि आप रूहानी अमलियात दुआएं वगैरह पढ़ के इसी पे भरोसा कर लें, ज़ाहिरी असबाब को छोड़ दें, ये बिल्कुल हुक्म नहीं देता। हमारा दीन जो है दोनों को मिला करके चलने का हुक्म देता है। तो आप जो शुगर को कंट्रोल करने वाली जो चीज़ें हैं, आपका डाइट वगैरह है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसको भी कंट्रोल करें, आप उस पर भी मुकम्मल तवज्जो दें। उसके साथ साथ जो वजीफ़ा बताया गया है मुकम्मल यकीन के साथ करें, अल्लाह चाहे तो बिल्कुल होगा। इन दुआओं में, वजीफ़ों में और अल्लाह के नामों में इतनी बरकत है कि सांप अगर काट ले तो जहर भी वहीं ख़त्म हो जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां हमने बाज़ाब्ता देखा है। रिपोर्ट कुछ था, फिर वज़ाइफ शुरू करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आया। तो ऐसी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो आप यकीन के साथ पढ़ें। पहली चीज़ आप अपने ग़िज़ा पे, जो चीज़ आपके रूटीन की चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल करें आप। उसके बाद मैं एक छोटा सा वजीफा अर्ज करता हूं, उसको पढ़ें। या अल्लाहु या सलामु 111 बार सुबह शाम पढ़ा करें। सुबह का मतलब फजर की नमाज के बाद, शाम का मतलब असर की नमाज के बाद, मगरिब से पहले पहले पढ़ लिया करें। ये 111 मरतबा या अल्लाहु या सलामु पूरे यकीन के साथ पढ़ें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपका शुगर कंट्रोल होगा और अल्लाह चाहे तो ख़त्म भी हो सकता है। जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। भाई नाज़रीन, आपसे गुजारिश ये भी कि जब भी हमसे बात करें फ़ोन टीवी की आवाज़ बंद करके हमसे आप बात करें। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ, अब्दुल वाजिद मेरा इसमें शरीफ है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत, मेरे एक छोटा सा मसला और वाक़या, आपको इसका जवाब क्या है मुझे समझा देना चाहिए। मैं अपने वालिद के खबर के करीब 35 साल से जाता हूँ मैं। ये 3 साल का वाक़या है। 1 साल में क्या होगा, एक सांप था, उसको खुंदल दिया, कुछ नहीं किया, चले गया। और फिर वही तारीख, फिर साल के बाद वही डेट पे, वही जुमेरात पे, फिर वही टाइम में फिर आके देखा, फिर उसको कुछ नहीं किया, चले गया। फिर तीसरे साल में गया तो सुना हजरत? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ हजरत सुन रहे हैं। फरमाए, आपका मसला थोड़ा सा मुख्तसर करके बताइए प्लीज। मेरे वालिद गुजर कर 35 जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप हमने सुन ली। उसके बाद आप हमेशा वहां जाते हैं, आगे थोड़ा सा मुख्तसर बताइए अपना मसला क्या है। आगे का तो 3 साल के बाद जब मैं मेरे वालिद के खबर के करीब गया, सराहने ऊद बत्ती सिलगाना था, एक शख्स
12 साल का छोकरा आया। जब खबरस्तान में कोई आदमी नहीं था, दिन के करीब 11:30 बजे, वो बोला मुझे 2 उदबत्ती दो, तो मैं उसको दे दिया। और फिर भी मैं उसको पूछा लो अंगार डब्बा, नहीं इधर है करके बोल के चले गया। बाद उदबत्ती सिंगला क्या है तो उसके आंख में देखा तो उसके आंख में सांप की शक्ल दिसी मुझे, तो ख्वाब में देखा वो भी शक्ल दिसी। तो फिर खबर के करीब खबर छोड़ के मेरे वालिदा के खबर के करीब गया, तो फिर वहां से 7 कदम मैं खबरस्तान से आना था, तो बहुत बड़ा सांप पंजा उठा तो सामने आया और किसी एक मजार थी वहां पे, मजार के अंदर चले गया। तो क्या मसला है समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ नहीं कराया वो मेरे को। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? पूछा तो समझ में नहीं आया ये क्या है, करको मौलाना से पूछेंगे। मैं आपसे ये सवाल रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सवाल को आप सुन रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर जवाब देंगे। जी मौलाना साहब। जी जी इंशाल्लाह। जी भाई, वो जो आपने जो भी देखा, जो भी मामलात हुए आपके साथ, हकीकत हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसकी हकीकत क्या है और उसके पीछे क्या हिकमतें या क्या राज है। ज़ाहिरी जितना हमने समझा है आपकी बातों से, उसका खुलासा ये है कि आप सबसे पहले अपने वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अपने वालिद साहब की मग़फ़िरत के लिए रोज़ाना नमाज की पाबंदी करें और उनकी मग़फ़िरत के लिए, वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करें, उनके नाम पर ईसाले सवाब करें। और आपसे अगर कोई ऐसा सांप वगैरह आपने जानबूझ के या अनजाने में मारा है, जिन्नात भी सांप की शक्ल में होते हैं, तो आप तौबा करें। ये 2 काम आप ज़रूर करें कि एक तो आपके वालिद साहब के नाम पे ईसाले सवाब करें, कुछ नेक काम करें उनके नाम पे, उनको पहुंचाएं उसका सवाब, और मग़फ़िरत की दुआ आप मुसलसल करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल होंगे। हमें उम्मीद है अब्दुल अजीज साहब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? हम सोनीपत से बोल रहे हैं। जी चौक से। फरमाइए मोहतरमा। हमारे घर पे ना इतनी वो आए। आपके घर पे क्या है? हमारे घर पे बहुत लड़ाई होती क्या है, हुआ? बहुत गाली देते हैं, और हमारा घर किराए पे भी हमारा इतना मुश्किल होता है, खाने की भी टोटा हो जाता है, ये किराए में चले जाते हैं सारे के सारे पैसे। अच्छा जी। इतना दुख होता है, बहुत ज्यादा किराए पे बिल्कुल, घर है और बिल्कुल। अपना घर है और नहीं। कोई मसला है आपका? पापा इतनी गाली देते, बहुत गाली देते हैं पापा तो। जी बहन, आपका मसला सुन लिया। मौलाना साहब ने क्या फरमाएंगे मौलाना साहब इनके बारे में? देखिए बहन, ये दीनी तालीमात से दीन से दूरी का नतीजा है। ये रवैया बिल्कुल घर वालों के साथ नहीं रखना चाहिए। हदीस पाक में है, कुल्लु मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी के हवाले से पूछा जाएगा। अगर कोई शख्स घर का बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे करे, उससे पूछा जाएगा कि उसने उस जिम्मेदारी को किस हद तक निभाई है। तो ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के यहाँ उनको जवाब देना होगा। बिला वजह किसी से मारपीट करना ये जुल्म है। अल्लाह उनको हिदायत दे। उसके साथ साथ आप एक काम ये करें, ये घरेलू मसाइल हल होने के लिए या अल्लाहु या रहमानु या रहीम 100 मरतबा रोज़ाना सुबह पढ़ें। घरेलू जो हालात हैं उसमें बेहतरी आएगी। और आपके वालिद साहब को किसी आलिम साहब से हो सके तो मुलाकात करवा दें। कुछ दीनी तालीम वगैरह रोज़ाना कुछ देर के लिए सही, कुछ बातें सुनने करने का मौका उनको मिले तो अच्छा होगा, तब्दीली आ सकती है। और एक काम आपको घर में बरकत के लिए आपने कहा, उसके लिए करना ये है, जब भी आप आपके वालिद से कहें वो सुन लें तो ठीक है, वरना कम से कम आप जब घर में दाखिल हों सलाम करके दाखिल हों। दूसरा काम ये करें, सूरह इखलास पढ़ें जैसे ही आप घर में दाखिल होंगे। तीसरा काम आपको ये करना है, पैसा कोई आपको दे तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर लें। जब दें तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इतना पढ़ के दें। ये 3 काम करें, इंशाअल्लाह ताला इतनी बरकत होगी आप खुद हैरान हो जाएंगे। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं पूना से इंसान बोल रही हूँ। जी साहब थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। हाँ, मेरा सवाल ये है जी, जो
अपना नमाज से दिल हट रहा है, और जो भी मैं मतलब बहुत कोशिश करती थी इनकी बातें दिल में उतारने के, पहले से भी मुझे दीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी है और सब बातों पर यकीन भी है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। और मेरी परेशानी है कि मैं ये चाहती मेरा दिल नमाज के तरफ लग जाए, तो मैं कोई ऐसा वजीफा मालूम है सबसे पूछना चाहती हूँ, मुझे बताइए। मेरे घर में खैर बरकत रहे, बेशक नमाज सबसे पहली जरूरत है। जी जी जी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब मेरी कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि ऐसा लगता है मैं नापाक। जी जी, इसके कारण मुझे जानना है। जी बिल्कुल बहन, नमाज देखिए ये शैतान इंसान के साथ लगा हुआ है, वो उसकी कोशिश ही ये रहती है कि हम अल्लाह के रास्ते से हट जाएं, इबादत से दूर हो जाएं, उसकी कोशिश रहती है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह के रास्ते की तरफ बढ़ें, शैतान जैसे रोके तो हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी आपको दिली तौर पे इबादत की तरफ रग़बत पैदा करने के लिए एक वजीफ़ा हम बताते हैं, ये रोज़ाना पढ़ा करें। सोने से पहले 3 तस्बीहां, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है, 3 तस्बीहां या दाइमु, ये 300 मरतबा आप पढ़ लें सोने से पहले। अल्लाह चाहे तो आपके दिल में इबादत की रग़बत पैदा होगी, नमाज की तरफ आपका दिल माइल होगा। और जब भी नमाज पढ़े, नमाज के बाद आप ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे बेहतरीन इबादत की तौफीक अता फरमा, तेरे जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। अपने अंदाज में ये 2 चीज़ें आप बतौर दुआ ज़रूर किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल होगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दुआ और दवा जारी है। फ़ोन नंबरात आपके इस टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। दुआ आफ़त और मुसीबत की रोकथाम का मजबूत वसीला है। बिलाशुबा दुआ अपनी असरअंगेज़ी और तासीर के लिहाज से मोमिन का हथियार है। दुआओं के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ हाजिर हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। देखें इस वक्त लाइन पे कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं पुणे से बात कर रही हूँ। फरमाए मोहतरमा। मेरी खाला का ना इंतकाल हो गया, 3 दिन की ज़ियारत पे सब लोग आदमी लोग कब्र के ऊपर गए ना 3 दिन से बजा के ना जी, तो कब्र बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ था। अच्छा, ऊपर के ऊपर जो सांप बैठा हुआ था तो सब डर गए देखे आदमी लोग, मैंने क्या अब क्या है कि क्या मसला है, अल्लाह का मालूम नहीं, लेकिन दुआ करने लगे जी, वो चला गया बाद में। जी जी, ऐसा बताइए जरा। बिल्कुल आपको बताएंगे। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी देखिए, हकीकत हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसकी हकीकत क्या थी, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे जो समझ में आता है हम इतना अर्ज़ करते हैं कि देखिए, इंसान आजमाइशी तौर पे उसको ये ज़िंदगी मिली है इंसान को, तो अच्छे अमाल करना चाहिए। हम वो ज़िंदगी गुजारें जिस ज़िंदगी से हमारा रब खुश हो। तो हर एक को अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए कि ये जो मुख्तसर ज़िंदगी है इसमें हम अपने रब को खुश करें और दीन के मुताबिक चलें, वरना एक दिन अल्लाह के आगे हाजिर होना है। वो सारी चीज़ें जो हमने अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की हैं उसका जवाब देना होगा। वो फिर अज़ाब की सूरत में अल्लाह का अज़ाब हम पे मुसल्लत होगा। अल्लाह रहम फरमाए, हमें अल्लाह अपने अज़ाब से बचाएं। तो आप जिनका इंतकाल आपने बताया है उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, आप मग़फ़िरत की दुआ करें, उनके नाम पे कुछ ना कुछ खैरात करें, कुछ गरीबों को खिलाएं या कुरान वगैरह पढ़ के उनके नाम पे बख्शें। मग़फ़िरत की कसरत से दुआ करें, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से? मुझे सिर्फ नमाज के लिए तकलीफ होती है पानी वगैरह से। जी, तो मुझे तयम्मुम की एक्शन करके बता दे मेहरबानी से। तयम्मुम का क्या बता दे? मतलब तयम्मुम किस तरह से किया जाता है वो करके दिखा दें। जी ठीक है, ताकि मुझे तो मेरे साथ साथ में दूसरे तमाम लोगों को फायदा पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी जी ठीक है। देखिए भाई साहब, सबसे पहले ये ख्याल रखिए कि तयम्मुम जो है, पानी बिल्कुल मैसर ना हो, पानी आपके पास ना हो, आप सफ़र में हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं करीब करीब में कहीं पानी मौजूद ही ना हो, तो उस वक्त तयम्मुम कर सकते हैं। या फिर दूसरी सूरत ये कि नमाज का वक्त इतना कम है कि आप पानी तक पहुंचने में नमाज का वक्त ख़त्म हो सकता है,
تو اس وقت تیمم کی اجازت ہے. ایسی کچھ خاص صورتیں ہیں جس میں تیمم کی اجازت ہو سکتی ہے، جیسے کوئی بیمار ہے پانی استعمال کرے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے. اس کے تفصیلی مسائل ہیں، ہم مختصر طریقہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں. آپ کسی پاک مٹی پہ، مٹی پاک ہوتی ہے، یہ پاک مٹی پہ جس پہ کوئی نجاست کا اثر نہ ہو، اس مٹی پہ آپ ہاتھ ماریں. اینٹ وغیرہ پر بھی آپ ہاتھ مار سکتے ہیں. ہاتھ مارنے کے بعد دونوں ہاتھ اس طرح جھاڑیں، آپ دھول وغیرہ کچھ بھی ہو تو گرد وہ نیچے گر جائے. اس کے بعد اپنے چہرے پہ ملیں، اپنے چہرے پہ، پورے چہرے پہ ملیں. پھر اور ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ ماریں. پھر دائیں ہاتھ کو کوہنیوں سے لے کر کے نیچے تک، پھر بائیں ہاتھ کو کوہنیوں سے لے کر کے نیچے تک پھیریں تو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. وہ اس طرح سے ہے، 3 انگلیاں لے کر کے ایسے کر کے پھر واپس لائیں، یا اپنی سہولت سے جیسے ہو سکے ہاتھوں کو آپ پھیریں، کافی ہے. چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرنا یہ کافی ہے. تیمم کے لیے نیت ضروری ہے، نیت کر کے یہ کرے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا تیمم ہو جائے گا. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں کرناٹک سے بول رہا ہوں. فرمائیں. فرمائیے حضرت، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہلو، شاید آپ کی ٹی وی کی آواز آن ہے، آپ تک ہماری آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے. ہاں بول رہا ہوں. نہیں، ہلو جی فرمائیے جناب، کیا مسئلہ آپ کا؟ مجھے ایک سائڈ تکلیف ہے سر، کبھی بھی رگ کا سر سے پاؤں تک پرابلم ہے. کڈنی کا پرابلم ہے، اتنا شاید ہم سمجھ پائے. ٹھیک، جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ مولانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. میں نمبرات دہرا دوں، 180041922154 اور 9989974324. دعا آفت و مصیبت کی روک تھام کا مضبوط وسیلہ ہے. بلا شبہ دعا اپنی اثر انگیزی اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے. دعا ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بیماری کو ختم کر دیتی ہے. صرف دعا تقدیر کے لکھے کو بھی پلٹ سکتی ہے. صرف اور صرف ایک مردہ شخص زندہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا مرض، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کا علاج دعا سے نہیں ہو سکتا. آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. اور اس وقت دیکھیں لائن پہ کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں دلی سے بول رہی ہوں. جی فرمائیں محترمہ. میرے نا بچی کے پورے بدن میں نشان ہے، اس نے دعا بتائی تھی، وہ مجھے پڑھنی ہے، بچی کو پڑھنی ہے. وہ بچی 6 سال کی ہے. آپ کی بچی کے پورے بدن پہ سفید داغ جو بتایا تھا آپ نے؟ ہاں، مگر وہ 6 سال کی ہے، اس کو پڑھنی دعا کی، مجھے پڑھنی ہے. وہ ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا جواب دے دیں گے. ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں اس وقت. السلام علیکم. ہلو. گزارش آپ سے یہ بھی ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کر لیجئے. ہلو. ہلو، السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جناب آپ ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے. ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جموں سے بول رہا ہوں. جموں سے؟ جی فرمائیے جناب. سر میں سوتا ہوں، جیسے رات کے ٹائم میں سوتا ہوں، مجھے خواب بڑے خطرناک آتے ہیں. جی. ہاں، سانپ وغیرہ خواب میں آتے ہیں. جی. ہاں. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بس یہی ہے. چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہم جو ہمارے پاس مسئلے بچے ہیں، 2 سوال ہیں دلی سے اور جموں سے، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ان کا ہم جواب ضرور دیں گے. آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. ہمیں آج کے لیے دیجیے اجازت، اس امید، اس توقع، اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.